हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। दिस इज सुमित कुमार नामदेव। आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10th एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई वांट टू डिस्कस सम important things regarding the word of light, because whenever I talk about this chapter, ठीक है ना, so someone will say about the refraction and reflection. No one will talk about the word of light. First we are discussing about the word of light, then we will discuss about the reflection and refraction. देखिए, basically when I talk about the term of light, and whenever I talk this question to the students, student will say some answers be like this one कि sir what is light. When I ask this question to the students, student be like this one कि sir कि light will be, या we can say है ना, तो object visible. If we want to see the object visible, we usually say कि sir ये light है. Means the visibility, या we can say the object visible कब होगा? जब अपन किसी भी लाइट को उस पे क्या करेंगे बच्चों? इमिट करेंगे, ठीक है, इंसिडेंट करेंगे. नेक्स्ट आई जस्ट get some more definitions from the student side कि sir light is a form of energy. Light is a form of energy. One more definition है ना I got from the student side, that is कि sir light is a EMF, electromagnetic waves. ठीक है ना. तो बेसिकली लाइट हियर रिप्रेजेंटिंग द थ्री definitions over here. First, light is a, we can see the object visible. The second one, it is a form of energy, and last one, it is light is a electromagnetic waves. ठीक है ना. तो बेसिकली लाइट को तीन टाइप से डिफाइन किया गया है कि लाइट सर जनरली जो है, हम किसी भी एनर्जी पार्टिकल्स की बात करते हैं तो अपन लाइट के पर्सपेक्टिव में सोचते हैं. नहीं, नाउ अकॉर्डिंग टू मी लाइट इट्स समथिंग एल्स. अच्छा, हैव यू हर्ड दिस वर्ड है ना, लाइक वर्ड लाइक दिस वन. आई एम जस्ट mentioning the word over here, that is photoelectric effect. I am talking about the word photoelectric effect. अब have you heard this word? कभी सुना है आपने वर्ड के बारे में ना? इन हिंदी we can say प्रकाश विद्युत प्रभाव. प्रकाश विद्युत प्रभाव. I am talking about this word photo. Photo here stands for the word of प्रकाश. तो बेसिकली हम प्रकाश के लिए क्या यूज करते हैं बच्चों? प्रकाश के लिए आप लोग यूज करते हैं लाइट. प्रकाश के लिए यूज करते हैं आप लाइट, बट इन फिजिक्स वी यूज फोटो फॉर व्हाट? किसके लिए? प्रकाश के लिए. तो व्हाट इज द फोटो ओवर हियर? व्हाट इज द फोटो ओवर हियर? द फोटो बेसिकली ओवर हियर रिप्रेजेंटिंग द वर्ड photon. I am talking about the theory that is after 19th century, because whenever you will talk about the branches of physics, there are two types of branches. Let me pause this topic and I am just explaining. The first, it is, when I talk about the branch of physics, the first it is classical physics. And second one, it is quantum physics. Means when I talk about the branches of science, first it is classical, second is quantum. Classical means before 19th century, and here I am talking about the word of quantum. What is quantum? What is quanta over here? बेटा quanta here representing the photon. हम फोटोन को ही quanta बोलते हैं. हम फोटोन को ही क्या बोलते हैं बच्चों? क्वांटा बोलते हैं. मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की टर्म में यदि आप क्वांटम फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो फोटोन ही क्वांटा है, या वी कैन से इन अदर टर्म कि क्वांटम फिजिक्स ही फोटोन है. ठीक है ना. क्वांटम फिजिक्स ही क्या है? फोटोन है, जो कि आफ्टर 19th सेंचुरी के बाद वाली है. एट द टाइम ऑफ 1905 two scientists were there. The first name was Albert Einstein and second name it is like Max Planck. They invented this theory in terms of photons, so that now we can say easily it is representing over here the term h nu. What is h nu, sir? H, it is a
Planck's constant. What is the h बच्चों? Planck's constant over here. Then when I talk about the nu is new, very familiar word है ना, familiar word we can say like frequency. न्यू किसको कर रहा है रिप्रेजेंट? फ्रीक्वेंसी को. तो एच न्यू बिकम द फोटोन. अब सम स्टूडेंट विल आस्क कि सर ये फोटोन होता है क्या है, क्या होते हैं फोटोन? जब भी किसी भी सरफेस पे लाइट पड़ता है, क्या पड़ता है? लाइट पड़ता है. तो लाइट पड़ने से उसमें से क्या निकलते हैं बच्चों? उसमें से निकलते हैं फोटोन एनर्जी. क्या निकलती है? फोटोन एनर्जी उससे बाहर होती है. तभी वो ऑब्जेक्ट आपको कैसा दिखता है? विजिबल दिखता है. और यदि अपन प्रकाश और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की टर्म में और डिफाइन करें तो आप लोग देखेंगे कि लाइट जो है वो क्या है? बंडल्स ऑफ फोटोन है. क्या है? बंडल्स ऑफ फोटोन. जब किसी लाइट को अपन करते हैं रिप्रेजेंट तो सारे फोटॉन्स कैसे होते हैं? आपस में ऐड हो जाते हैं. सारे फोटॉन्स आपस में क्या होते हैं? ऐड हो जाते हैं. और इन बंडल्स ऑफ फोटॉन्स को ही क्या बोला जाता है? लाइट बोला जाता है. और यही आपका लाइट का एक टेक्निकल डेफिनेशन है कि वी कैन से द बंडल्स ऑफ फोटॉन्स इज कॉल्ड लाइट. It's called light. I am not denying that these definitions are incorrect. No, it is actually absolutely correct. But in terms of technical, in terms of we can say, in terms of more conceptual, light basically it is a form of photons. I know that light having the two natures, it is another thing. ठीक है ना. बट द मेन थिंग इज अबाउट द लाइट, इट इज द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, बंडल्स ऑफ फोटॉन्स को अपन क्या बोलेंगे बच्चों? लाइट बोलेंगे. और ऑब्वियसली लाइट कैन मेक द ऑब्जेक्ट विजिबल. जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ेगा तो वो कैसा होगा बच्चों? विजिबल हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ लाइट. लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज कॉल्ड properties of light. Basically light having the many properties because of its dual nature. The first one, it is we can say the particle nature. Which nature बच्चों? Particle nature. देखो पहले क्या था कि लाइट को डिफाइन किया पार्टिकल नेचर में और फिर डिफाइन किया बच्चों वेव नेचर में. ठीक है ना. लाइट के दो नेचर थे, एक पे पार्टिकल नेचर था, ठीक है ना, एक आपका कैसा नेचर था बच्चों? वेव नेचर था. तो हियर वी आर रिप्रेजेंटिंग द बोथ काइंड ऑफ नेचर. हियर यू कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ओवर हियर. Obviously the first property, it is scattering of light. What is the meaning of scattering? प्रकाश का फैल जाना, scattered हो जाना, फैल जाना, उसी को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं. इसको आप समझ सकते हैं जैसे आपने जो है कोलाइडी विलियन देखा होगा. ठीक है ना. कोलाइडी सॉल्यूशन जो होता है, जनरली आई एम गिविंग वन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड तो कंसेप्ट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट वेरी इजीली. आप किसी भी ग्लास में देखेंगे, ग्लास में अपन ये दूध डाल दें, ठीक है ना, और दूध डालने का जिसमें लाइट डालोगे आप, तो लाइट क्या होगा? वो गिलास क्या हो जाएगा? पूरा विजिबल हो जाएगा. गिलास क्या हो जाएगा? पूरा विजिबल हो जाएगा. देन यू कैन सी इजिली कि जो लाइट है, जो नाइट लैंप है, हियर रिप्रेजेंटिंग द टर्म्स ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट. क्या प्रेजेंट कर रहा है बच्चों? स्कैटरिंग ऑफ लाइट. नाउ आई एम टॉकिंग the second term, that is called dispersion of light. And one more term I have, the polarization of light. I know these topics are not given in the 10th class, still I am discussing, because actually when I talk about the properties of light, most probably in class 10th we have only two types of properties. First it is reflection of light, and second one it is refraction of light. Then we will discuss in depth after some time in upcoming slides. But I am talking about the scattering, I am talking dispersion and polarization. They are not giving in depth, but still I am discussing, because it is related to properties of light. So I have one more slide for you. Wait a minute, I am opening. Here we have the light. ठीक है. तो I am discussing है ना the diffraction of light along with the polarization of light है ना in depth. We can say in other words, I am discussing this kind of things in we can say like this one, in the summarized form. तो diffraction of light क्या होता है? पढ़िए. By the definition of diffraction, wait a minute, I am showing to you. By the definition of diffraction refers to apparent bending of wave around the small obstacles,
है ना, एंड द स्प्रेडिंग आउट ऑफ वेव्स पास्ट स्मॉल ओपनिंग्स, ठीक है ना। मतलब यदि कोई भी लाइट जो है वो किसी भी कॉर्नर से मुड़ जाएगा, भाई कोई भी लाइट है, आप देखते हैं जनरली ऐसे अपन मॉर्निंग में उठे हैं, है ना, और समझ लो कि आपका जो डायरेक्शन है आपके घर का वो इस डायरेक्शन में है, और जैसे आप विंडो को या गेट को ओपन करते हैं, सन रेज जो होती हैं वो अपने अपने गेट के वहां से ऐसे कॉर्नर से मुड़ के क्या होती है बच्चों, वापस आने लगती है। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब बात करते हैं अपन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको बोलते हैं अपन पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो ये क्या होता है सर, देखो बहुत बढ़िया टॉपिक है ना। इसमें क्या होता है कि जब लाइट बीम आती है तो बेसिकली क्या था कि पहले अपने को पार्टिकल नेचर के बारे में ही पता था, ठीक है ना, वेव नेचर के बारे में पता नहीं था। तो उस टाइम जो हाइगन थे, हाइगन आपने नाम सुना नहीं होगा आई थिंक 10th क्लास में, तो हाइगन सर जो थे उन्होंने जो है वो पार्टिकल को ही रिप्रेजेंट कर पाए, वेव नेचर को वो नहीं कर पाए। तो उस टाइम मैक्सवेल सर आए, मैक्सवेल, आई एम डिस्कसिंग द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। तो मैक्सवेल ने क्या करा बच्चों कि लाइट की पोलराइजेशन को जो है वो एक्चुअली रिप्रेजेंट किया कि व्हाट इज द एक्चुअल पोलराइजेशन। इज यू सी इज दिस डायग्राम, यहाँ पे लाइट वेव्स देखिए आप कैसे आ रही है, आड़ी टेढ़ी आ रही है सारी की सारी, कुछ सेम प्लेन में है क्या, नहीं है। और जैसे ही अपन यहाँ पे समझ लो कि यहाँ पे क्या लगाया है, एक फिल्म लगाई है, वी कैन से यहाँ पे जनरली यूज किया था सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने यूज किया था टूरमेलिन क्रिस्टल का। क्या का यूज किया था, टूरमेलिन क्रिस्टल का। वो क्रिस्टल क्या करता था, जो अनपोलराइज्ड लाइट था उसको क्या करता था, पोलराइज्ड कर देता था। इन सिंपल लैंग्वेज इफ आई एम डिस्कसिंग इन टर्म्स ऑफ 10th क्लास कि सर पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, तो इसको अपन ये बोल सकते हैं कि जो लाइट जो होता है वो एक्चुअली सेम प्लेन में नहीं होता, परपेंडिकुलर नहीं होता है प्लेन के, क्योंकि जैसे ही वो आगे जाता है कैसा होता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। कैसा होता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। क्योंकि देखो जब अपन वेव नेचर को डिफाइन करते हैं, किसको, वेव नेचर को डिफाइन करते हैं, तो लाइट जो होता है, जो देखिए यहाँ पे देखिए लाइट कैसा है, अनपोलराइज्ड है। डायरेक्शन देखिए आप, अच्छे ध्यान देखिए, डायरेक्शन देखिए है अनपोलराइज्ड। अब जैसे ही यहाँ पे लाइट मैंने यहाँ पे इस क्रिस्टल में इंसर्ट किया तो लाइट देखिए पैरेलल हो गया। लाइट कैसा हो गया, पैरेलल हो गया, पैरेलल हो गया, पैरेलल हो गया, लाइट पैरेलल हो गया। अब ये लाइट तो पैरेलल हो गया, पर इसके कैसा हो गया वो, अरे इसके कैसा हो गया, इसके परपेंडिकुलर हो गया। किसके हो गया, इसके परपेंडिकुलर हो गया। मतलब लाइट जो है अनपोलराइज्ड से कैसा हो गया, पोलराइज्ड हो गया। कैसा हो गया, पोलराइज्ड हो गया। उसी बेसिस पे जो है हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिफाइन कर पाए। किसको डिफाइन कर पाए बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अपन इस पोलराइजेशन ऑफ लाइट के पर्सपेक्टिव से आप लोग डिफाइन कर पाए। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट along with the polarization light. If you want to take the screenshot of this one, you can take. मैं हट जाता हूं यहां से, है ना। डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन ये और पोलराइजेशन कंसेप्ट आपका ये लिखा हो। मैं हट जाता हूं, आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब बात करते हैं बच्चों यहाँ पे हमारे सेकेंड टॉपिक की, आफ्टर द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। हाँ, अब आता है अपना चैप्टर का मेन टॉपिक जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। वैसे ये टॉपिक आपने ऑलरेडी 8th क्लास में पढ़ लिया होगा, है ना, पर स्टिल आई एम डिस्कसिंग दिस टॉपिक कि एक्चुअली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। आइए डायग्राम बनाते हैं, समझते हैं इसको। अब समझ लो कि मैंने यहाँ पे एक प्लेन सरफेस लिया है। देखिए जब अपन रिफ्लेक्शन की बात करते हैं ना बच्चों, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि रिफ्लेक्शन के केस में हमारे पास में जो सरफेस होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, प्लेन सरफेस होना चाहिए, है ना। तो आपका मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि सर यदि प्लेन सरफेस नहीं होगा तो क्या रिफ्लेक्शन नहीं होगा, नहीं, रिफ्लेक्शन विल बी कॉज, बट इन दिस केस आई एम टेकिंग द प्लेन सरफेस। आफ्टर दैट आई एम डूइंग दिस थिंग। सर ये क्या कर रहे हैं आप, बेटा हम यहाँ पे कर रहे हैं पॉलिश। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पॉलिश कर रहे हैं, मतलब सरफेस को हम पॉलिश कर रहे हैं। यदि आप सरफेस को पॉलिश नहीं करेंगे तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा भैया। पॉलिश किससे करते हैं सर, व्हाट काइंड ऑफ मेटल विल बी यूज्ड टू डू द पॉलिश। तो हम इसमें यूज करते हैं, एक तो अपन सिल्वर यूज करते हैं, ठीक है ना। सेकेंडरी वी कैन यूज द एल्यूमिनियम, ठीक है ना। तो जनरली हम एल्यूमिनियम और सिल्वर की पॉलिश करते हैं, तो जिससे जो है रिफ्लेक्शन ज्यादा कंफर्टेबल होता है, ठीक है। चलिए अब बनाते हैं अपन यहाँ पे अपनी बेसिक से डायग्राम, ठीक है ना। देन आफ्टर वी डिस्कस इन डेप्थ। यहाँ पे हमने बनाया बढ़िया सा इंसिडेंट रे, और ये बनाई हमने यहाँ पे कौन सी बच्चों, रिफ्लेक्टेड रे।
बेसिक सा प्रिंसिपल है, सभी को पता है आई थिंक, स्टिल आई एम डिस्कसिंग। ये हो जाएगी बच्चों कौन सी रे, नॉर्मल रे। तो ये हो गया अपने पास में इंसिडेंट रे, वी कैन इंडिकेटिंग बाय आई आर। सेकेंड वन वी हैव ऑब्वियसली द सेकेंड रे, इट इज नोन एज द reflected ray, and third one we have the normal ray. As we all know already, angle I is equal to angle R. This is the first law of reflection, and second law I'm discussing over here. Incident ray, reflected ray and normal ray is in the same plane. वो कैसी होती है, सेम प्लेन पे होती है। तो आफ्टर डिस्कसिंग दिस थिंग है ना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे इज द सेम प्लेन एज वेल एज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, तो ये होगा अपने रिफ्लेक्शंस के दो लॉ हो गए। एक लॉ ये हो गया कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और सेकंड वन इट इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे एट द सेम प्लेन। तो ये तो हमारे 8th क्लास में भी दिया है। व्हाट इज न्यू ओवर हियर, wait a minute, I am discussing the new thing over here. Now I am discussing the main part. चलो कलर चेंज कर लेते हैं। यहां पे मैंने एक एंगल बनाया, यहां पे एक एंगल बनाया। एनीवन नो द नेम ऑफ दीज एंगल्स? किसी को पता है एंगल्स को क्या बोलते हैं? इनको, इन एंगल्स को बोला जाता है बच्चों ग्लांसिंग एंगल्स। कौन से एंगल बोलेंगे बच्चों अपन इसे? ग्लांसिंग एंगल्स बोलेंगे। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे बोलेंगे अपन? ग्लांसिंग एंगल्स बोलेंगे। अब सपोज दैट आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, सिंपल सा क्वेश्चन, कि भाई यदि एंगल आई इज इक्वल टू 50 डिग्री है, if the value of angle I is equal to 50 degree, then tell me the value of glancing angle. Then tell me the value of glancing angle. तो glancing angle का जो वैल्यू कितना होगा? तो बहुत इजी है, यहाँ पे एंगल बना कितने का बन रहा है बच्चों? ये एंगल कितने का बन रहा है बोलिए फटाफट? ये एंगल बन रहा है सर 90 डिग्री का। तो हमारा ग्लांसिंग एंगल वैल्यू कितना आने वाला है? अरे बोलिए कितना आने वाला है? ये आने वाला है बच्चों 90 minus 50 and your answer will be 40 डिग्री। ठीक है भाई, ये कौन सा एंगल हो जाएगा अपने पास में? ये ग्लांसिंग एंगल हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर ये एंगल कितना होगा? अरे ऑब्वियसली एंगल आई जब एंगल आर के इक्वल है, और यदि ये कितने डिग्री का है? 40 डिग्री का है, तो ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा बच्चों? 40 डिग्री का। इसका मतलब कि दोनों ग्लांसिंग एंगल्स आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं सिंपल सा, आप मुझे करके बताइए कमेंट सेक्शन में कि इफ द रिफ्लेक्टेड एंगल is equal to, I am taking like 45 degree, then tell me the value of glancing angle. ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ना, anyone can perform this question very easily. चलिए, now I am discussing one more term. Wait a minute, I am trying. अब यदि इमेजिन कीजिए, है ना, अब इमेजिन ये कीजिए आप कि यदि यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ये प्लेन मिरर नहीं होता, ये प्लेन मिरर नहीं होता, तो ये जो आपका इंसिडेंट रे है, ये जो आपका इंसिडेंट रे है, तो ये कहां जाती बच्चों? अरे बताओ जल्दी, कहां पे जाती? अरे कहां जाती? ये सीधा निकल जाती सर, सीधा निकल जाती। ये कैसे निकल जाती? सीधा निकल जाती। तो मुझे एक बात बताइए, आप मुझे एक बात बताइए कि यदि ये सीधा निकल जाती, तो ये वाला एंगल क्या बोलते हैं? ये एंगल को क्या बोलते हैं अपन? इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं डेल से। हाँ, कुछ बुक्स में जो है उसको डी से भी इंडिकेट कर रहा है, तो एज पर एज योर कन्वीनियंट यू कैन टेक, है ना, बाय द डेल और बाय द डी, कोई फर्क पड़ता नहीं उससे। तो इसको करते हैं किससे? अपन डेल से। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन। अब एक क्वेश्चन मैं आपको सिंपल सा देता हूं। सपोज दैट कि यहाँ पे उन्होंने पूछा कि बताओ भैया कि एंगल आई इज इक्वल टू, वी कैन टेक लाइक 45 डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन? तो यू कैन इजिली अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, यू कैन इजिली अप्लाई दिस फॉर्मूला। विच फॉर्मूला सर? फॉर्मूला विल बी लाइक डेल इज इक्वल टू, द फॉर्मूला विल बी लाइक डेल इज इक्वल टू 180 माइनस 2i, 180 माइनस 2i। अब ये फार्मूला ऐसा कैसे आया? देखो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 180 माइनस 90 माइनस थीटा, क्योंकि 90 माइनस थीटा, यहाँ भी कितना होने वाला है? यहाँ भी कितना? 90 माइनस थीटा। तो ओवरऑल कितना हो गया? 90 90 180 माइनस थीटा माइनस 2 थीटा।
अरे ये भी 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल की बात कर रहा हूं मैं, ये वाला एंगल, और ये भी कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो बोथ आर बिकम 90 प्लस 90 180, और ये कितना हो जाएगा थीटा थीटा, ऑब्वियसली 2 थीटा, तो फार्मूला विल बी 180 माइनस थीटा, मतलब कितना हो जाएगा 180 माइनस 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई ओवर हियर बच्चों 45, then the angle of deviation 180 minus 90 become 90 degree। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है, क्या मैं लिख सकता हूं ऐसा 180 माइनस 2r? लिख सकते हैं, बिकॉज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर है, वो तो कॉमन फैक्टर है, वो तो सभी में होने वाला है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप मुझे करके बताइएगा, सपोज दैट एंगल आई एम टेकिंग लाइक 60 डिग्री, तो मुझे आप वैल्यू बताइए एंगल ऑफ डेविएशन का। मैं आपको दे रहा हूं 20 सेकेंड, जो भी आंसर है आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ डेल, लेट्स ट्राई, 20 सेकेंड स्टार्ट्स नाउ। चल रही है अभी, आ जाओ उधर, अब बढ़िया फ्लो बन गया, आ जाओ जल्दी। ठीक, चलिए, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, है ना, और यू गॉट द वैल्यू ऑफ डेल आल्सो। नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस। तो हियर वी हैव द टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस बच्चों। फर्स्ट इट इज रेगुलर या स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, एंड सेकंड वन इट इज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन में आप हमेशा ध्यान रखिएगा, है ना, बेसिक सा फार्मूला है, ज्यादा कोई दिमाग जरूरत नहीं है आपको यहाँ पे, है ना, कि पहली कंडीशन ये है कि जो इंसिडेंट एंगल होगा बच्चों वो किसके इक्वल होगा? अरे किसके इक्वल होगा? वो हमेशा होने वाला है आपके किसके? रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होगा। बट जब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो इसमें इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्ट एंगल के बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे कि अभी ये बोर्ड आपको दिख रहा होगा, इट इज द प्लेन सरफेस, इस पे जो भी रिफ्लेक्शन हो रहा है वो रिफ्लेक्शन कैसा हो रहा है? ऑब्वियसली रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। जैसे घर पे आप कांच होगा, आपका मिरर लगा होगा, और व्हेनेवर यू सी योर इमेज इनसाइड द मिरर, तो आप देखेंगे कि जो आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है वो कैसा हो रहा है बच्चों? वो रिफ्लेक्शन आपका ऑब्वियसली कैसा हो रहा है? ऑब्वियसली जो है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, और ये रिफ्लेक्शन कैसा होगा? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होगा। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को अपन इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। हिंदी में बोला जाता है नियमित परावर्तन, और इसको बोलते हैं बच्चों अपन अनियमित परावर्तन। मतलब कोई भी यदि प्लेन सरफेस, अच्छा कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये तो यहाँ पे आप सरफेस, एक्चुअली जूम करा हुआ है, जूम करा हुआ है ये, ठीक है ना, सरफेस आपका जूम करा हुआ है। तो इफ यू आर थिंकिंग कोई हर सब सरफेस ऐसे ही होते हैं, आपने क्लास 8 में फ्रिक्शन पढ़ा होगा, है ना, कोई भी सबसे सरफेस प्लेन नहीं होता है, तो व्हेनेवर वी सी बाय द माइक्रोस्कोप तो सरफेस कैसे हो जाते हैं? ऐसे हो जाते हैं। ये तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर डायग्राम गलत बना के रखा हुआ है कि नहीं, कि भाई सब तो हमको ऐसा बताया था, सर ने ऐसा बना दिया। भाई सरफेस तो ऐसा ही है, बट व्हेनेवर यू जूम इट इट इज बिकम लाइक दिस वन, क्योंकि नो अ सरफेस इन द वर्ल्ड वी कैन से लाइक फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस सरफेस दुनिया में होता ही नहीं है, बस अपन उसको अज्यूम करते हैं कि भाई ठीक है, ठीक है। चलिए, ज्यादा डिस्कस करने का है नहीं टॉपिक है। नाउ है ना, आई एम गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक, है ना, दैट इज ओवर हियर, वेट अ मिनट। हाँ, फॉर्मेशन ऑफ बाय, हाँ, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, ठीक है ना, कि भाई प्लेन मिरर से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है ना। तो आइए अपन इसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं कि भाई इमेज का फॉर्मेशन जो है किसी भी प्लेन मिरर से कैसे होगा। इसके लिए बनाता हूं, सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, यहां पे बनाता हूं एक प्लेन मिरर जो कि मैंने वर्टिकली ले लिया है, ठीक है। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, व्हाइट कर लेते हैं, क्योंकि व्हाइट पे ब्लैक अच्छा लगेगा, ठीक है ना। चलिए, ये बनाया मैंने प्यारा सा प्लेन मिरर, ठीक है। अब इस प्लेन मिरर जो आपका बना हुआ है ना, इस प्लेन मिरर को अपन एक काम करते हैं, यहां से वो ले लेते हैं अपन, इसका बना लेते हैं अपन प्रिंसिपल एक्सिस। ये बन गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है बच्चों। और यहां पे अपन रख देते हैं एक इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को आप नाम दे दीजिए, ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी, ठीक है। फर्स्ट
द लाइट रे इज कमिंग, ओके हियर आई एम टेकिंग लाइट रे, लाइट रे का कलर चेंज कर लेते हैं अपन, है ना, कलर लेते हैं ये वाला, येलो ले लेते हैं, लाइट रे का कलर ये। चलो, लाइट रे इज कमिंग आफ्टर रिफ्लेक्शन, एक मिनट वेट अ मिनट, शेप ले ले वापस, ठीक है, हाँ, लाइट रे इज कमिंग आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज टू सेम डायरेक्शन, ठीक है ना भाई, भाई जिस डायरेक्शन से आएगी उसी जगह पर चली जाएगी। सेकेंड लाइट रे आई एम जस्ट कंसिडरिंग कि भाई ऐसी एंगल बना के आ रही है, और अभी हमने रिफ्लेक्शन तो पढ़ के आ रहे हैं बच्चों कि जैसे ही लाइट रे इंसिडेंट करेगी सेम एंगल पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये बोलना चाह रहे हैं सर ये वाला एंगल आई किसके इक्वल होगा, एंगल आर के इक्वल होगा, ठीक है। अब ये दोनों लाइट रे तो मिलना तो है नहीं, ये तो बढ़ गई आगे की तरफ, तो क्या करेंगे सर, अब करना ये है कि अपन लाइट रे को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, किधर बढ़ाएंगे बच्चों, पीछे की तरफ, तो आओ इसको अपन पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। तो यहां पे अपने पास में ये वाली रे दिख रही है आपको, ये वाली है, इसको अपन पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। अच्छा ये अपन ने यहाँ पे इंगित कर दी, ठीक है, ये लो भाई, ठीक है, अब ठीक है, ठीक, एक लेटर है अपनी ये होगी, ठीक। अब यहां पे मुझे मिल गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इसको मैं एक काम करता हूं, नाम दे देता हूं एडेस, ठीक है। और ये एडेस से मैं क्या करने वाला हूं बच्चों, यहाँ पे मैं एडेस से क्या करने वाला हूं, यहाँ पे एडेस बीडेस एक परपेंडिकुलर खींचना चाहता हूं, जो मैंने खींच भी दिया है। तो हियर वी हैव द एडेस बीडेस, दिस इज द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ए बी, ये ए बी की इमेज काय पे बन गई बच्चों, अरे बोलिए काय पे बन गई, एडेस बीडेस पे बन चुकी है सर, बन चुकी है। यहाँ पे ए बी से इमेज काय पे बन गई है, एडेस बीडेस पर क्रिएट हो गई है। और जब आप इन इमेजेस को देखेंगे तो कुछ मिलेगा आपको, क्या मिलेगा कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, मतलब सर क्या बोलना चाह रहे हैं आप, मैं बोलना ये चाह रहा हूं बच्चों कि जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है वही डिस्टेंस कहां से कहां तक का है, यहां तक का। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी भी आ गई इमेज फॉर्मेशन की, सर क्या प्रॉपर्टी आ गई कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा वो किसके इक्वल होगा बच्चों, डिस्टेंस ऑफ इमेज के इक्वल होगा। दिस इज द फर्स्ट assumption, this is the first property I got from this diagram. So suppose that I am giving a simple numerical to understand this concept. The numerical will be like, we can say कि सर बहुत इजी न्यूमेरिकल दे रहा हूं मैं आपको, डोंट वरी अबाउट द न्यूमेरिकल सेक्शन, है ना। द न्यूमेरिकल विल बी लाइक, मुझे आप आंसर बताइए, आई विल गिव यू 2 सेकंड्स टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। सपोज दैट मैं आपसे बोलूं कि बेटा, बहुत इजीली समझना बात को, मैं आपसे बोलूं कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज के पर्सपेक्टिव में मैं आपसे बोलूं कि सपोज दैट कि यहां से यहां तक जो है वो डिस्टेंस 2 मीटर है। मतलब ये कि पर्सन से लगा के समझ लो कि पर्सन है यहाँ पे, ये जो आपका मिरर है, इस पर्सन और मिरर डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर है। तो आप मुझे बताइए कि इस पर्सन से इस इमेज का डिस्टेंस कितना होगा। रिपीट करूं क्वेश्चन, देखो मैंने क्वेश्चन ये पूछा है कि इस पर्सन से इस इमेज, ये जो आपका मिरर है इसका डिस्टेंस 2 मीटर है, तो ये जो आपका पर्सन है इससे इमेज का डिस्टेंस कितना होने वाला है। तो बहुत इजी आंसर है, यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 2 मीटर। टोटल आंसर कितना आने वाला है बोलिए बच्चों, 4 मीटर। कितने मीटर, 4 मीटर, क्योंकि हम जानते हैं कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट किसके इक्वल है, डिस्टेंस ऑफ इमेज के। बेसिक सा क्वेश्चन था। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं इसके रिगार्डिंग ही, क्या आप मुझे बताइए कि समझ लो कि आपकी हाइट जो है वो 6 फीट है, हाइट कितनी है आपकी, 6 फीट है। तो आपको मिनिमम कितने फीट का मिरर रिक्वायर्ड होगा आपकी फुल व्यूइंग के लिए, इसके लिए बच्चों फुल व्यूइंग के लिए कितना मिरर रिक्वायर्ड होगा। मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं, ठीक है। एक ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको कि लाइक 2.5 फीट का मिरर लगेगा, या आपको लगने वाला है फिर से 6 फीट का ही मिरर ले लेते हैं अपन। तीसरा ऑप्शन दे देता हूं मैं आधा, 3 फीट का मिरर लगेगा, या चौथा ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको 12 फीट का मिरर लगेगा। आई एम रिपीटिंग माई क्वेश्चन अगेन कि समझ लो आपकी हाइट जो है वो 6 फीट है, और 6 फीट हाइट को देखने के लिए आपको कितने मीटर का, सॉरी कितने फीट का मिरर रिक्वायर्ड होगा। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, 1 मिनट ज्यादा दे दिए, 20 सेकंड देता हूं, आंसर दीजिए, टाइम लीजिए, आपका टाइम लीजिए आप।
चलिए, तो आई थिंक यू गॉट द आंसर। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बच्चों, और वो आंसर होने वाला है आपका 3 फीट। तो हमारी एक प्रॉपर्टी और आ गई। एक प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी है बच्चों? सेकंड प्रॉपर्टी आई अपनी कि फुल व्यूइंग के लिए हमारा जो प्लेन मिरर होना चाहिए उसका साइज कितना होना चाहिए? हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट साइज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बच्चों? हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट साइज। यदि कोई मिरर आपसे आधी हाइट का होगा देन यू कैन सी योर होल इमेज, है ना, क्लियरली इनसाइड द मिरर, जो कि कहां से बनेगी? आपके सर से लेके आपके पैर तक। ठीक है बच्चों। नाउ I am going to discuss the second concept. I mean sorry, first concept तो ये हो गया, second थर्ड concept। अब आपसे पूछा जाए कि यदि आप किसी कमरे में खड़े हैं, बना देता हूं डायग्राम, समझ में आएगा। देखो बहुत इजी है। समझ लो कि आप हो, चलो मैं हूं, बस मैं हूं ये, और यहां पे लग दिया मैंने मिरर जो मेरे से आधी हाइट का है। ठीक है ना? आप बोलेंगे सर आपने पूरी का बना दिया। हाँ चलो आधी बना देते हैं, बस ये लो। अब ठीक है, अब ये आधी हाइट का है तो पीछे वॉल का हाइट कितना हो कि मेरे पीछे वो वॉल पूरी दिखे। अब मैं आपसे बोलूं कि अगेन मैं 6 फीट का हूं, ठीक है ना, और ये तो आपको बता ही दिया 3 फीट का होगा, तो इसका हाइट कितना हो कि ये पूरा दिखे। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर 12 फीट। द करेक्ट आंसर, ज्यादा अपन घुमाते नहीं, डायरेक्ट आंसर बताते हैं बच्चों। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2 फीट ओनली। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, आपके पीछे जो वॉल होगा उसका हाइट कैसा होना चाहिए? 1/3 होना चाहिए, 1/3 हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। बट द कंडीशन इज दैट यू विल स्टैंड मिडिल ऑफ द रूम। कहां खड़े रहेंगे आप? रूम के मिडिल में। यदि आप बोलोगे मैं बाहर खड़ा हो जाओ, आप यदि रूम के मिडिल में खड़े हैं और आपका हाइट 6 फीट है तो मिरर का हाइट कम से कम कितना होना चाहिए? 3 फीट। और आपके पीछे जो वॉल है उसका हाइट कितना होना चाहिए बच्चों? अरे कितना होना चाहिए? बोलिए भाई बोलिए, कितना होना चाहिए? 2 फीट होना चाहिए। ठीक है। अब मैं आपको सिंपल एक क्वेश्चन देता हूं, मुझे आप आंसर बताइएगा इसके रिगार्डिंग, कि समझ लो कि मिरर का हाइट जो है, मिरर का हाइट जो है वो ले लेता हूं मैं लाइक, हाँ 2.5 फीट जो है वो किसका हाइट है बच्चों? मिरर का हाइट है। मिरर का हाइट है। तो मुझे आप बताओ कि जो पर्सन है यदि वो देखना चाहता है अपने पूरी फुल व्यू इमेज को तो उसका हाइट कितना होना चाहिए, एज वेल एज जो वॉल है उसका हाइट भी कितना होना चाहिए। दिस इज योर होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क। आई वांट दीज आंसर्स, है ना, इन द कमेंट सेक्शन। आई होप यू विल डू दिस, जो कि बहुत इजी है ना। हाँ, एक अजम्पशन, एक कंडीशन और मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विल बी कम इन योर एनुअल एग्जामिनेशन एज वेल एज इन द साइंस ओलंपियाड एग्जामिनेशन, मेनी मोर एग्जामिनेशन दिस क्वेश्चन विल कम। दैट इज द क्वेश्चन लाइक कि व्हाट इज द फोकल लेंथ, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। क्या बच्चों कि फोकल लेंथ कितनी होती है सर? तो फोकल लेंथ होती है बच्चों इसकी इन्फिनिटी। अब आप बोलेंगे सर इन्फिनिटी कहां से हो गई? अरे भाई, फोकल लेंथ जो होती है वो किसकी होती है भाई? कैसे होती, कैसी भाई फोकल लेंथ होती क्या है, इसको अपन डिस्कस करेंगे आगे। व्हाट इज द फोकल लेंथ? ठीक है ना। तो फोकल लेंथ मतलब कि फोकस तक की लेंथ ऑब्वियसली, बट इसकी कितनी होती है? इन्फिनिटी होती है, इनफाइनाइट होगी। ये बात ध्यान रखना आप लोग, ये क्वेश्चन जनरली एमसीक्यूज में आते हैं बच्चों। तो हियर वी डिस्कस्ड 4 थिंग। फर्स्ट थिंग इट इज व्हाट आर द assumptions? Distance of object equal to distance of image. Second thing is that if your height is 6 feet, then if you want to see your full image in the mirror, then the object side will be half, आधा होगा। तीसरी कंडीशन, यदि आप बात करेंगे आपके पीछे वाली वॉल की, तो पीछे वाली की हाइट कैसे होना चाहिए? ऑब्वियसली कैसी होना चाहिए? आपसे 1/3 होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? आपसे 1/3 होना चाहिए। और मैं बात करूं यदि आपसे बच्चों किसकी, अब मैं बात करता हूं आपसे, हाँ फोकल लेंथ की, तो फोकल लेंथ कितनी होगी बच्चों? इन्फिनिटी होगी। और दिस इज योर डायग्राम। इस डायग्राम में एक्चुअली डिस्कस करना भूल गया आप लोगों से, स्टिल बता देता हूं क्या डिस्कस करना भूल गया। आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने यहाँ पे जो है बच्चों हार्ड लाइंस यूज करी है। देखिए हार्ड लाइंस, ये हार्ड लाइंस, हार्ड लाइंस। और यहाँ पे कैसी यूज करी है मैंने? डॉटेड लाइन। इसके पीछे कोई रीजन है ना? है ना। जब भी वर्चुअल इमेज बनेगी बच्चों, वर्चुअल इमेज, तो देखिए वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनती है। वर्चुअल हमेशा कैसी बनती है? इरेक्ट बनती है, सीधी ही बनेगी, उसको बनना पड़ेगा। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना आप लोग। और हमेशा वर्चुअल इमेज को आप बनाएंगे वो हमेशा कैसी बनेगी? हमेशा मिरर के पीछे ही बनेगी।
हमेशा कैसी बनेगी, मिरर के पीछे ही बनेगी। और कैसी बनेगी, सीधी बनेगी। और कैसी बनेगी, और कैसी बनेगी भाई, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, एज वेल एज बिहाइंड द मिरर बनेगी। ये तीन चीज आप याद रखिएगा। और जब भी वर्चुअल बनेगी तो किससे बनाओगे आप उसको, डॉटेड लाइन के शो, डॉटेड लाइन से, डॉटेड लाइन शो करोगे। क्या शो करोगे बच्चों उसको, हमेशा डॉटेड लाइन से आपको शो करना पड़ेगा। क्या शो करोगे आप उसको, डॉटेड लाइंस के थ्रू ही शो करोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके यहाँ पे टाइप्स ऑफ मिरर्स। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आपने डिस्कस तो कर ही लिया अपन ने, हमने इस मिरर को डिस्कस कर लिया है। कौन सा मिरर है भाई ये, अरे कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर है। सिंपल सा कंसेप्ट है कि भाई जैसे ही लाइन आएगी, जैसे ही कोई लाइन आएगी, वो लाइन क्या करेगी बच्चों, वो लाइन क्या करेगी, वापस उसी पाथ को फॉलो करेगी जिससे वो आई थी, जिससे वो आई थी। ठीक है ना, बट डेफिनेटली लाइन शुड बी पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। कैसे होना चाहिए, समानांतर होना चाहिए और इसके लंबवत होना चाहिए। देन वी कैन से, है ना, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ प्लेन मिरर। अब आता है बेटा मेन टॉपिक, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। देखिए बेसिकली व्हेन आई टॉक अबाउट द एनुअल एग्जामिनेशन, तो बच्चों मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना। व्हेन आई टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ सीबीएसई, एमपी बोर्ड, आईसीएसई, एनी काइंड ऑफ बोर्ड ओवर देयर, वन क्वेश्चन विल बी डेफिनेटली कम from the concave mirror side as well as from the convex mirror side। ठीक है ना, तो these are the this properties we will discuss, don't worry, in very depth manner। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपन। स्टार्ट कर रहा हूं मैं यहां से कॉनकेव मिरर से। देखो प्लेन मिरर तो आपने डिस्कस कर ही लिया ऑलरेडी, हमने सारे ऑब्जर्वेशंस भी पढ़ लिए, कंसेप्ट भी पढ़ लिए, सारी समरी भी डिस्कस कर लिए। आइए हम स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कॉनकेव मिरर। आइए शुरू करते हैं बच्चों। तो कॉनकेव मिरर के पर्सपेक्टिव में लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट, देन यू कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कॉनकेव मिरर वेरी इजीली। ठीक है, मेरा शेप ले लेता हूं यहां से, लेट मी टेक द शेप ओवर हियर। कलर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि कलर में तो मजा ही नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए कलर ले लेते दूसरा अपन। चलिए आइए, तो ये बन गया अपना एक प्यारा सा डायग्राम। ठीक है, और ये डायग्राम बनाया मैंने कॉनकेव मिरर का। अब बच्चे क्वेश्चन करेंगे सर ये कॉनकेव मिरर क्या होता है। ठीक है ना, तो मेरे पास है ना, मैं आपको बताता हूँ, मेरे लेके आया था कॉनकेव मिरर। ठीक है ना, मेरे पास दोनों मिरर है, मेरे पास कॉनकेव मिरर भी है और कॉन्वेक्स मिरर भी है। अब आप बोलेंगे सर दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए कॉनकेव मिरर जो होता है वो मिरर जो है ना, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, स्टिल आई एम शोइंग यू कि ये कॉनकेव मिरर जो है वो यहां से ना अंदर की तरफ झुका हुआ होता है। देखिए केव का मतलब क्या होता है, केव का मतलब क्या होता है, केव का मतलब होता है गुफा। गुफा मतलब ये कि यदि कोई मिरर जो है वो अंदर से दबा हुआ हो, है ना। जैसे कि मैं 3 एग्जांपल देता हूं, बहुत समझ जाएंगे आप इजीली। समझ लो कोई व्यक्ति भूखा है, उसका पेट कैसा होगा, अंदर की तरफ। पेट कैसा होगा, अंदर की तरफ, मतलब कॉनकेव। ठीक है, उसने 2 रोटी खाई, पेट कैसा हो गया, अरे पेट कैसा हो गया, प्लेन मिरर हो गया, प्लेन मिरर, प्लेन प्लेन प्लेन। और उन्हें 10 रोटी खा ली, उसका पेट कैसा हो गया, कॉन्वेक्स हो गया, कॉन्वेक्स हो गया। देन यू कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कॉन्वेक्स, कॉनकेव एंड प्लेन मिरर। मतलब यदि कोई पार्टिकल जो है या मिरर जो है वो अंदर की तरफ बीच में से दबा हुआ दिख रहा होगा आपको, दबा हुआ, तो क्या बोलेंगे उसको अपन, कॉनकेव मिरर। और व्हेन द मिरर बीच में से कैसा होगा, उठा हुआ होगा, यहां से उठा हुआ है, ये उठा हुआ है, क्या बोलेंगे उसको अपन, कॉन्वेक्स मिरर। और प्लेन मिरर सबको पता है, ये सिंपल, घर में सबके मिरर लगा हुआ है। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं यहाँ पे कॉनकेव मिरर की। तो कॉनकेव मिरर में कुछ प्रॉपर्टीज है, ये टॉपिक बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्योंकि यही है होल सोल बेस कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, ध्यान से देखिएगा। अपना जो भी कंसंट्रेट आप काम कर रहे हैं, प्लीज स्टॉप इट एंड लुक एट हियर वेरी केयरफुली, बिकॉज दिस टॉपिक इज जेन्युइनली वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे उसको अपन, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे बच्चों। ठीक है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो हर मिरर में आप बनाएंगे, हर मिरर में आप लोग बनाएंगे। इसको बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। हिंदी में आई थिंक इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है बच्चों, इसको मुख्य अक्ष बोलेंगे। ये कॉनकेव है, कॉनकेव है। पॉलिश देखिए बाहर तरफ से करा हुआ है, अरे पॉलिश कहां से करा हुआ भाई, बाहर से करा हुआ, बाहर से करा हुआ है। इसमें सेकेंड अपन यहां पे बनाएंगे बच्चों पोल। ये कहलाएगा क्या, पोल, पोल।
POLE, पोल। ठीक है, अब यहां से जितनी डिस्टेंस आप लोगे, ठीक है ना, मतलब समझ दैट मैंने यहां पे लिया F, तो जितनी P से लेके F तक की डिस्टेंस होगी बच्चों, उतनी कितनी होने वाली है, F से लेके C तक की डिस्टेंस होने वाली है। जितनी P से F तक उतनी C से F तक, तो ये यहां से यहां तक कितनी होने वाली है, F स्मॉल f। इसके बाद डिस्कस किया था मैंने, फोकल लेंथ जो है इन्फिनिटी होती है, कि P से F तक जो है वो F होगी, P से F तक क्या होगी, F स्मॉल f, ये कैपिटल F है बच्चों, कैपिटल F। और दिस वन वी कैन से R, मतलब यहां से लेके यहां तक, मैं बात कर रहा हूं यहां से यहां तक, डोंट बी कंफ्यूज, मेरे को अच्छे से करता हूं, नहीं वेट अ मिनट, अच्छा यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, P से लेके C तक, PC, PC हियर प्रेम चोपड़ा, नहीं प्रेम चोपड़ा नहीं है, PC जो है वो डिस्टेंस है कहां से, पोल से C। C मतलब क्या है, C मतलब सेंटर है, किसका सेंटर है सर, इस कॉनकेव मिरर का सेंटर है बच्चों, और इसको इंडिकेट डिनोट करेंगे अपन किससे, R से। R क्या है सर, R रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं बच्चों इसको हिंदी में अपन, ठीक है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। F क्या है, फोकल लेंथ है P से F तक, P से F तक की, P से F तक की, ठीक है। और C क्या है बच्चों, अरे C क्या है, C यहाँ पे क्या बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो कुछ बेसिक बता दिया मैंने आप लोगों को। P फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, यहाँ पे मैं कंसिडर कर देता हूं बच्चों, एक मिनट, हाँ यहाँ पे कर देता हूं मैं, यहाँ पे हो जाएगा MPN। MPN क्या है बच्चों, कॉनकेव मिरर है सर। P से F तक क्या है बच्चों, फोकल लेंथ है सर। P से C तक क्या है बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो यहाँ पे PC मतलब PF का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों अपने पास, यहाँ पे स्मॉल f, जिसको बोलेंगे अपन फोकल लेंथ। स्टिल आई एम रिपीटिंग अगेन द सेम थिंग बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर चैप्टर। सेकंड इट इज PC, प्रेम चोपड़ा, ये कितना हो जाएगा बच्चों, R हो जाएगा। R क्या हो जाएगी बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी, ठीक है ना। अब टोटल डायग्राम आते हैं बच्चों इनके 8, कितने डायग्राम्स आते हैं, 8 डायग्राम्स आते हैं, जिसमें कि 6 डायग्राम जो है, कितने डायग्राम, 6 डायग्राम जो है वो डायग्राम होते हैं बच्चों कॉनकेव मिरर के। 6 रहेंगे आपके कॉनकेव मिरर के, कौन के बच्चों, कॉनकेव मिरर के, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं। देखिए जनरली बच्चे फंसते कहां पे, न्यूमेरिकल पोर्शन। Seriously, when I talk about any students regarding the physics, they are still suffering to solve the numerical question because they are not understanding the concept of concave and convex mirror. जब तक इनके डायग्राम्स आपको नहीं आएंगे, इनको डायग्राम्स नहीं बोलते, इनको बोलते हैं बच्चों रे डायग्राम्स। क्या बोलते हैं इनको अपन, रे डायग्राम्स। मतलब ये डायग्राम्स तो हैं पर कौन से डायग्राम, ये रे डायग्राम्स है। इफ यू नॉट अंडरस्टैंड द रे डायग्राम्स you can't perform any single numerical in your book. Still I am saying the right thing. जैसे कि example, if you want to speak in English, you should learn first the tense. If you don't know about the tense, if you don't know about the models, narration, active passive, all the things, you can't speak English fluently. If you want to actually perform the optics numericals, है ना, then you have to understand the concept of making of ray diagrams, ठीक है ना। तो इन नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट डायरेक्टली फ्रॉम द रे डायग्राम। नेक्स्ट क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज दिस इज द जनरली इंट्रोडक्शन क्लास ना, क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्कस किया ऑब्वियसली लाइट की प्रॉपर्टीज, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। आई हैव डिस्कस्ड जस्ट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ दीज things, but in next class I will discuss each and everything regarding the concave mirror, convex mirror, all the ray diagrams. But I discuss, then I will start the most important part of this chapter, that is called the numerical, and I will solve each and every numerical, not only your NCERT book but from the NCERT examiner and also for your competitive exams. So stay tuned, join my next class. If you seriously like my video, then please subscribe students and please share with your friend. Thank you very much. I am Sumit Namdev signing off from my first class. Thank you for watching. Thank you beta.